અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ ભુજ મધ્યે મોદી પર આકરા પ્રહાર સાથે સભા સંબોધી। હજારોની સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। નરેન્દ્ર મોદીએ 15 લાખ રૂપિયા તમામ લોકોના ખાતામાં નાખવાનું જૂઠાણું ચલાવ્યું હતું, પરંતુ અમે દર વર્ષે 72,000 રૂપિયા દેશના 20% ગરીબોને આપીશું। 5 કરોડ ગરીબોને દર વર્ષે રૂપિયા 72,000 તેમના પરિવારની મહિલાઓના ખાતામાં આપીશું। મોદીએ ઉદ્યોગપતિઓનું 3,50,000 કરોડ રૂપિયા લેણું માફ કર્યું। અમે એ રૂપિયા ગરીબોને આપશું તેવું ભુજ ખાતે જાહેર સભાને સંબોધતા કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ તેમની લાક્ષણિક અદામાં જણાવ્યું હતું। વધુમાં તેમણે નરેન્દ્ર મોદીએ નોટબંધી કરીને લોકોને લાઇનમાં ઊભા કરી દીધા, તેમાં કોઈ ઉદ્યોગપતિઓ લાઇનમાં ન હતા। એટલું જ નહીં, ગબ્બર સિંહ ટેક્સ નાખ્યો, જેને કારણે નાના વેપારીઓ મજદૂર પણ પરેશાન થયા। ઉદ્યોગપતિઓને જમીન, પાણી, એરપોર્ટ તેમજ બેંકના રૂપિયા આપી દીધા। બીજી તરફ નોટબંધી, જીએસટીને કારણે લોકો પાસેથી પૈસા છીનવાઈ ગયા અને તેને કારણે ખરીદ શક્તિ ઘટી। પરિણામે મંદી આવી, કારખાના બંધ થયા। અમે ન્યાય યોજના દ્વારા પૈસા આપીશું, તેના કારણે લોકોની ખરીદ શક્તિ વધશે તેમ જણાવી ઉમેર્યું હતું કે દેશમાં કોંગ્રેસની સરકાર આવતાની સાથે જ પહેલા જ વર્ષમાં 22 લાખ યુવાનોને સરકારી અને 12 લાખ યુવાનોને પંચાયતમાં નોકરી આપવાની પણ જાહેરાત કરી હતી। આમ એક 15 અમીરો માટે કે જેમને પાણી સહિત જે માંગે તે તુરંત જ મળી જાય છે, જ્યારે બીજી તરફ ગરીબોની કે જેમને ન્યાય નથી મળતો, ભારતનો ખેડૂત ડરેલો છે, ત્યારે કોંગ્રેસની સરકાર આવે મુખ્ય બજેટની સાથે જ અલગથી કિસાન બજેટ પણ રજૂ કરશે તેવી જાહેરાત કરીને કિસાન બજેટમાં ખેડૂતો માટે કલ્યાણકારી યોજનાઓ હોવાનો પણ દાવો કર્યો હતો। કોંગ્રેસની સરકાર આવશે તો કોઈ પણ ખેડૂતને લોન નહીં ભરવા માટે જેલ નહીં થાય, યુવાનોને ધંધા માટે સરકાર લોન આપશે, 3 વર્ષ સુધી કોઈ ટેક્સ નહીં હોય, યુવાનોને મંજૂરીની પણ જરૂર નથી તેમ જણાવી અંતમાં તેમણે ન્યાય યોજના ગરીબો માટે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક સમાન બની રહેશે। પ્રારંભમાં મહેશભાઈ ઠક્કર, શિવજીભાઈ આહિર, ઉષાબેન ઠક્કર, જુમાભાઈ રાયમા, વાલજી દનીચા, વીકે હુંબલ, બચુભાઈ આરેઠિયા, આદમભાઈ ચાકી, નવલસિંહ જાડેજા, પ્રભારી ખુરશીદ સૈયદ, હીરાભાઈ જોટવા સહિતના આગેવાનોએ પ્રાસંગોચિત ઉદ્બોધનમાં ભાજપ સરકાર ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા, તો કોંગ્રેસના આગેવાન અહેમદ પટેલ, રાજીવ સાતવ, અમિત ચાવડા, મોરબી કચ્છ બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નરેશ મહેશ્વરી, જિલ્લા પ્રમુખ યજુવેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ પણ પોતાના પ્રવચનમાં ભાજપને આડા હાથે લીધા હતા। राजीव सातव जी ही आयो। राजीव सातव जी, अमित चावड़ा जी, अहमद पटेल जी, लालजी देसाई जी, युजवेंद्र सिंह जडेजा जी, प्रद्युमन सिंह जी, संतोष बहन जी, ब्रिजेश मिर्जा जी, वीके हुंबले जी, खुर्शीद सैयद जी, हमारे कैंडिडेट्स नरेश महेश्वरी जी, स्टेज पे हमारे सब सीनियर नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। थोड़ा मेरा प्रोग्राम लेट चल रहा है, आपको ठहरना पड़ा, थोड़ा सा कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आपसे शुरुआत में ही माफी मांगता हूँ। 5 साल से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने 3-4 बड़े वायदे किए थे। सबसे बड़ा उनका वायदा था कि हर बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए डाल के दिखा दूंगा। काला धन है, चोरों से मैं काला धन छीन कर जनता की जेब में डाल दूंगा। मिल गया आपको 15 लाख, मिल गया बैंक अकाउंट में। 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए हैं। हमारी जमीन अदानी को, आपकी जमीन अदानी को दी, नर्मदा का पानी आपको नहीं देते हैं। हमारी हॉस्पिटल दे दी, ये देखो हॉस्पिटल ले लिया। और बताइए भैया,
आपकी जमीन छीनी, जल छीना, रोजगार नहीं दिया और 15 लाख का झूठा वायदा किया। तो मैंने सोचा नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला, सच्चाई क्या है? तो मैंने कांग्रेस पार्टी के दिया, नीरव मोदी को इतना दिया। अगर हम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं तो बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए कांग्रेस पार्टी कितना पैसा हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डाल सकती है? मैंने पूछा और मैंने उनसे कहा कि जाइए इस पर काम कीजिए और फिर वापस आके मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की सरकार अगर चाहे तो कितना पैसा गरीबों के बैंक अकाउंट में डाल सकती है। और मैं आपसे लंबी थियोरी नहीं चाहता, मैं किताब नहीं पढ़ना चाहता, लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता, मैं सिर्फ एक नंबर चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का नंबर दिया था, मैं आपसे एक नंबर चाहता हूं। और मैंने उनसे कहा आप जाइए, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से बात करनी है उनसे करिए, हिंदुस्तान के इकोनॉमिस्ट से बात करनी है उनसे कीजिए, मगर 3-4 महीने में मुझे एक नंबर चाहिए। कुछ दिन पहले आए और कागज पे उन्होंने एक नंबर लिख दिया, 72,000 रुपए। मैंने उनसे पूछा 72,000 का मतलब? 10 साल में 72,000, 5 साल में 72,000, 6 महीने में 72,000, कितने टाइम में 72,000? उन्होंने कहा देखिए, हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हर साल 72,000 रुपए डाले जा सकते हैं। 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए डाले जा सकते हैं और इससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इससे अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। यह है हमारी न्याय योजना। अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसान का बीमा का पैसा अनिल अंबानी के जेब में जाता है। हर रोज आप पढ़ो किसी ना किसी अरबपति को हिंदुस्तान की सरकार पैसा देती है। तो हमने सोचा अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा देता है तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा दे के दिखा देगी। अब इसका दूसरा भी कारण है, पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला है, हिंदुस्तान के किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों के जेब से। नोटबंदी की जो हमारी माताएं बहनें यहाँ ने कहा 2% जीडीपी का नुकसान होने वाला है और वही सही निकला। नोटबंदी के बाद लाखों लोगों ने अपना रोजगार खोया। आपने लाइन देखी, लाइन में आपको अनिल अंबानी दिखाई दिया था, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी। लाइन में ये लोग नहीं थे, लाइन में हिंदुस्तान के ईमानदार लोग थे। नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने गब्बर सिंह टैक्स दिया, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स। नोटबंदी ने और गब्बर सिंह टैक्स ने आपने चीजें खरीदनी बंद कर दी, शर्ट, पैंट, जूते, टूथपेस्ट, साबुन आपने खरीदना बंद किया। जैसे आपने खरीदना बंद किया, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया, वैसे ही बेरोजगारी बढ़ गई। सीधी सी बात। और आज 45 आपसे कहा था, अब आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वही बात मैंने वहां कही। मैंने कहा देखिए कुछ भी हो जाए मैं किसानों की रक्षा करता हूं,
कुछ भी हो जाए 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के हर एक किसान का कर्जा माफ करके मैं दिखा दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा पैसा कहां से आएगा? हम न्याय योजना की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं पैसा कहां से आएगा? मैंने वहां बोला अनिल अंबानी जैसे चोरों की जेब से आएगा नरेंद्र मोदी जी, आपके दोस्तों के जेब से आएगा। और 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के हर एक किसान का हमने कर्जा माफ कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हम किसानों के दिल से डर मिटाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आज के हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में किसान घबराया हुआ है, किसान को रास्ता नहीं दिख रहा है। तो हमने निर्णय लिया है कि जैसे पहले रेलवे बजट होता था, एक मेन बजट होता था और एक रेलवे बजट होता था, वैसे ही चुनाव जीतने के बाद मेन बजट के साथ हिंदुस्तान के किसान का आदर करने के लिए एक किसान बजट